regular bail application before this honorable court. The offence is under section 318 of BNS. My lordship, the first and foremost ground on which I'm pressing this bail is that the alleged offence lastly took place on 27/5/2024. That is before the enforcement of BNS. Despite that, overlooking this essential fact, BNS has been enforced on in this case, which is not the governing law at that time. So that is the ground, Your Lordship, that the criminal prosecution cannot be drawn under BNS in this case. Number one. Number two, Your Lordship, in this case, the only allegation which is against the applicant is that on account of some cyber crime, only the name and details of the persons whose accounts have been illegitimately been induced, that has been provided by the applicant. She has not received or demanded any money. There has been no deception on her point. There is no material to show that she was part of any kind of conspiracy or there was any meeting of mind with the other accused persons. In fact, her accounts were seized and taken, examined by the investigating officers, and no amount misappropriated or diverted found in her account. So there has been absolutely no wrongful gain on her part. So there is absence of deception, there is absence of inducement, and there is no wrongful gain on her part. On the basis of Section 27 memo of one of the co-accused, she has been implicated, and no discovery or recovery is found on that basis. So that becomes again inadmissible. That is why, Your Lordship, the applicant is entitled for the bill. She is in detention since 25/8/2024, having no criminal antecedents. Only similar case which is registered on the same facts at Jabalpur, there the bail has already been granted. Your Lordship, this is the order of the bail, where all these things were considered, and the Honorable Court, considering the fact that no wrongful deception was there on her part, and there has been no wrongful gain also, she's been granted bail. Yes, please. Chief, kindly the order sheet dated 24 and 24. It was directed to all the investigating officer of this case. Yes. So he is present. Rakshit is present. So explain the money trap and the complicity of the applicant in the arrest of this. Please explain. Sir, क्या हुआ था इन्होंने क्या? ठाकुर जो है भोपाल के रहने वाले हैं। Just one objection. He is at one level. He is not the investigating officer. He is the SHO. I am the investigating officer, Dinesh Verma. He is not in the dress. That's why I was asking. कविता ठाकुर का जो मुख्य कार्य था सर, वो लोगों से खाते खरीदती थी और खुलवाती थी, और खाते खरीदती थी का क्या मतलब? वो लोगों को लालच देके कि आप इसमें अकाउंट खुलवाइए और आपका जो आधार कार्ड, उसका आपका जो मोबाइल की सिम और जो आपको पासवर्ड आईडी मिलता है वो आप उनको प्रोवाइड करवाइए, और बदले में हम आपको 1% का बेनिफिट देंगे। इसलिए उसने जो एक्यूज हर्ष चौहान है, उसको उसने अपने फोन पे वॉलेट से 40,000 रुपीज ट्रांसफर किए थे, जो कि हम लोगों ने लगाया। हर्ष चौहान के कनेक्शन मिला उसके अकाउंट में 40,000 डलवाए थे, और बाद में उसने एक चौहान ट्रेडिंग कंपनी करके एक अकाउंट खुलवाया जो कि करंट अकाउंट था। इसमें राकेश चौहान के खाते में 51 लाख रुपए गए, और उसमें से 20 लाख रुपए राकेश चौहान ने अपने सेविंग अकाउंट में डाले, और उस अकाउंट में से 5 लाख रुपए अपने बेटे हर्ष चौहान के खाते में डाले। वो दोनों भी हमने आरोपी बने। तो कविता जो है उनसे चैटिंग भी करती थी, उसकी चैटिंग भी मोबाइल पे हमने जब्त किया है, स्पेशल भोपाल भेजा है, रिपोर्ट आई तो उसमें चैटिंग भी मिल गई। इससे क्या करते थे ये लोग ऐसा करके? इससे चीटिंग क्या था? ये एक्चुअली पूरा जो शेयर मार्केट के नाम पर लोगों से पैसा लगवा रहे थे, और वो जो पैसा था वो इन फ्रॉड अकाउंट में डलवाते थे, और इन अकाउंट से पैसा आगे जाता था, इनका अपना परसेंटेज काट के 2 या 3%, 2%। किसने शिकायत की थी कि हमारा पैसा इन्होंने? वर्षा आनंद करके उसकी शिकायत का प्राप्त हुआ। उसमें 2,88,00,000 हिस्से का जब साइबर फ्रॉड हुआ, उसमें से 51 लाख रुपए की चैल हमको यहाँ पे मिली, उसको हम लोग की नोट गिरफ्तार किया। और ये वर्षा डांगी का स्टेटमेंट क्या है? हाँ,
स्टेटमेंट में जो अकाउंट नंबर आए थे उसमें एक अकाउंट मिला था और राकेश तुरंत का, तो उससे हम लोग जब पूछताछ की तो कविता ठाकुर ने इससे अकाउंट खुलवाया था और उनसे कहा था कि घर के बाहर एक चौहान ट्रेडिंग करके आप स्टेट लगा दीजिए ताकि आपका करंट अकाउंट खुल जाए। Roshi, I'm reading the statement of Rasha Singh, who is a complainant. मैं अपने कथन में बताया कि मैं उपरोक्त पते पर अपने परिवार के साथ निवास करती हूँ। दिनांक 27 मई 2024 को मोबाइल नंबर पॉइंट से व्हाट्सएप पर मैसेज आया था जिसके द्वारा मुझे शेयर मार्केट में स्टॉक का एनालिसिस कर मुझे इन्वेस्ट करने के लिए बताया। इन्वेस्ट करने पर मुझे प्रॉफिट हुआ। फिर मुझे व्हाट्सएप पर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक भेजी गई जिस पर मेरे द्वारा लिंक ज्वाइन कर लिया गया, जिस पर प्रतिदिन स्टॉक बाय करने के लिए बताया जाता था, जिससे मुझे प्रॉफिट होने लगा। इसके बाद और प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे एक लिंक और भेजी। इसके द्वारा एक यूके इंडिया फास्ट ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराया गया और प्रतिदिन डिस्काउंट रेट पर स्टॉक बाय कराए गए, जिससे बहुत फायदा होने लगा। इस ऐप पर की सिक्योरिटी को लोगो लगा हुआ था, जिसको मेरे द्वारा गूगल पर जाकर देखा तो सही पाया, जिसके बाद मेरे द्वारा इस पर प्रतिदिन स्टॉक्स बाय करने के लिए अन्य खातों से पैसा जमा कराने के लिए ऐप के माध्यम से दिए जाने लगे, जिसमें मेरे द्वारा अपने खाता क्रमांक सो IDFC बैंक से दिनांक 9 जुलाई 2024 से 30 जुलाई 2024 तक कुल अन्य खातों में राशि 84,50,000 रुपीज एवं खाता क्रमांक सो एक्सिस बैंक से दिनांक 9 जुलाई 2024 से 30 जुलाई 2024 तक 4,35,000 रुपए एवं मेरे परिचित व रिश्तेदार से पैसे कुल 28,80,000 रुपए अलग अलग खातों में जमा कराए गए थे। 2,88 लाख। फिर उसके बाद क्या हुआ? 2,88 lakhs. That's it, Your Lordship. That is what my submission is, that there is no deception. एक स्टेटमेंट सो है एक्चुअली। नहीं, 2,88,00,000 जमा करा दो, उसके बाद क्या हुआ? उनका ये था जब वो उनका जो वर्चुअल अकाउंट होता है उसमें ये जो पैसा है कई गुना बढ़ के दिखता है, तो उसको करीब ये 85 करोड़ से ऊपर दिख रहा था प्रॉफिट के लिए। जब उसने सोचा उसने कि कुछ पैसा हम लोग ने सोचा कि हम पैसा कुछ निकाल के और जो उधार लिया लोगों से चुका देते हैं, तब ये लोग बोले कि नहीं इसमें आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा और आप इसमें 53 लाख रुपीज टैक्स और जमा कीजिए। तब उनको लगा कि हम लोग फ्रॉड का शिकार हो गए हैं, क्योंकि वो वर्चुअल अकाउंट। ये ऐसा कहाँ कहा? उसने अपने बयान में कहा ये बात? इन्वेस्टिगेशन बयान नहीं आया लॉर्डशिप। इनिशियल वाला बयान था में। उसके बाद और बयान लिया आपने? बाकी लॉर्डशिप जो इन्होंने कंप्लेंट फाइल करी है उस कंप्लेंट के अंदर लॉर्डशिप शी हैज मेंशन्ड दिस। इनके जो हस्बैंड है रविंद्र डांगी, वो भी स्टेटमेंट है और इसके अलावा इनके जो है इनके अकाउंट से भी 25 लाख रुपए दिए गए। ये तो सब जमा किया। चीटिंग तब होगी जब पैसा नहीं मिला, तो वो कहाँ है पार्ट? जमा करने तक का पार्ट तो दिख रहा है, इन्होंने इतना 2 करोड़ जमा किया, इन्वेस्ट किया, जो भी किया। ऐसा कहाँ कहा? उसने अपने बयान में कहा ये बात? इन्वेस्टिगेशन बयान नहीं आया लॉर्डशिप। इनिशियल वाला बयान था में। उसके बाद और बयान लिया आपने? बाकी लॉर्डशिप जो इन्होंने कंप्लेंट फाइल करी है उस कंप्लेंट के अंदर लॉर्डशिप शी हैज मेंशन्ड दिस। इनके जो हस्बैंड है रविंद्र डांगी, वो भी स्टेटमेंट है और इसके अलावा इनके जो है इनके अकाउंट से भी 25 लाख रुपए दिए गए। ये तो सब जमा किया। चीटिंग तब होगी जब पैसा नहीं मिला, तो वो कहाँ है पार्ट? जमा करने तक का पार्ट तो दिख रहा है, इन्होंने इतना 2 करोड़ जमा किया, इन्वेस्ट किया, जो भी किया। ये जो उन्होंने शुरू में हमको एक लिखित में एक आवेदन दिया था कि आधार पर लिखा है, उसमें पूरा लिखा था कि जब किस स्टेज पे उनको पैसा नहीं मिला फिर उनको मना कर दिया। बताइए। अतः श्रीमान से निवेदन है कि धन ऐप के माध्यम से जिन लोगों ने मुझसे ऐप डाउनलोड कराकर उस ऐप से प्रॉफिट दिखाकर बार बार पैसे जमा करवाकर ठगी की है, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर पैसे वापस करवाने का कष्ट करें। लॉर्डशिप इसमें मतलब आई हैव आल्सो रेड व्हेन आई वाज रीडिंग दिस फाइल। 2,81,00,000 हमने लोगों से जिनसे उधार लिया उनके भी स्टेटमेंट। 2,81,00,000 जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो भी हमने जिन लोगों से उधार लिया था, जिन लोगों से हाँ ठीक है, वो तो आपका है।
तो पहले ये तो बताएं कि चीटिंग कहाँ पे हुई। पैसे लॉर्डशिप जमा करना इज नॉट चीटिंग। जमा कर दिया लॉर्डशिप, अब उसके बाद निकालने का इसमें इनके प्रतिवेदन में है। उस ऐप पर मेरे अकाउंट में प्रॉफिट अत्यधिक दिखाई दे रहा था। दिनांक 26 जुलाई 2024 को लोगों से जो पैसे उधार लिए थे उनको वापस करने हेतु ऐप से पैसे निकालने के लिए प्रोसेस किया गया, परंतु पैसा मेरे खाते में नहीं आया। मेरे द्वारा व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से पूछा गया कि मेरे पैसे क्यों नहीं निकल रहे, तो उन्होंने बताया कि पैसा अधिक हो गया है, इसको निकालने के लिए और इसको निकालने के लिए और अमाउंट एक्सक्लूसिव चैनल ओपन कराने हेतु मुझसे 50 लाख रुपए का बोला गया, जिसके बाद मैंने पैसे निकालने के लिए फिर से मैंने उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए खाते पर अपने परिचित लोगों से उधार लेकर पैसा जमा करा दिए। इसके बाद जब पैसे नहीं निकले तो मुझे धोखाधड़ी होने का एहसास हुआ। इस प्रकार मेरे द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2024 तक रुपए खाता क्रमांक IDFC बैंक में 84,50,000 रुपीज, खाता क्रमांक सो एक्सिस बैंक में 43,50,000 रुपीज और मेरे परिचित व अन्य से ट्रांसफर व नगद बैंक में जमा कुल राशि 16 करोड़ 1,60,00,000 रुपए जमा कराए गए। कुल राशि 2,88,00,000 रुपए जमा कराए गए हैं। परिचितों के खातों की जानकारी संलग्न। ठीक, ये उन्होंने जमा करा दी धनवर्षा ऐप के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग करने के। हु वाज ऑपरेटिंग धनवर्षा ऐप? बाहर का है, डोमेन जो बाहर सिंगापुर की कंपनी है, वहाँ से ऑपरेट हो रहा है। उसकी डिटेल्स अभी तो मैं उसको मेल किया था, सिंगापुर डोमेन है तो जानकारी अभी नहीं दे पाएगी। इसलिए जैसे जो गवर्नमेंट फॉरेन में वेबसाइट रजिस्टर कराते हैं और आगे से पैसा डाल देता है तो कुछ समय बाद वेबसाइट बंद कर देते हैं। एक्चुअली ट्रेडिंग नहीं होती सर। धनवर्षा ऐप तक आप नहीं पहुंच पाए कि वो कौन ऑपरेट कर रहा है। इसलिए हमने मेल किया तो सिंगापुर डोमेन निकला था, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं। वहां से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि कविता ठाकुर इसमें इन्वॉल्व है? तो ये जो जिन अकाउंट से पैसा गया था उसके साथ हम लोगों ने मनी ट्रेल किन किन अकाउंट में पैसा गया था? जो भी अकाउंट है उसमें एक अकाउंट जो है राकेश चौहान के नाम पर भी निकला है, जो कि मंडी में रहने वाला था, और इसके अकाउंट में 51 लाख रुपए गए थे। राकेश चौहान के अकाउंट में 51 लाख गए थे। कहाँ से गए थे ये राकेश? ये वर्षा डांगी के अकाउंट, वर्षा डांगी के अकाउंट से। अकाउंट से ऐसे कुल 10 अकाउंट पैसा गया, तो उसमें ये अकाउंट का जो ट्रेल हमको मिला वो 51 लाख रुपीज का मिला, और कुछ ट्रेल अभी हमको नोएडा के मिला, तो वहाँ भी हमारी टीम जाएगी। अच्छा, जो नोएडा के अकाउंट है। तो राकेश चौहान अरेस्ट हो गए? जी राकेश चौहान ने क्या स्टेटमेंट, क्या इन्फॉर्मेशन दी? राकेश चौहान सर ये बताया था कि कविता ठाकुर हमको मिली थी, उसने हमसे बोला कि आप लोग अकाउंट खुलवाइए, इसमें आपको फायदा होगा, हम आपको 1% तक का देंगे। उसमें आपको ये शर्त रहेगी कि आप जब अकाउंट खुलवाएंगे तो जिस सिम से आप अकाउंट खुलवा रहे हैं वो सिम फिर मुझे देना पड़ेगी, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हमको हैंड ओवर करना पड़ेगा, ताकि आगे का जो ऑपरेट वो आगे से करेंगे। बदले में आपको हम उतना 1% देंगे। तो जैसे अकाउंट खुलवाया 51 लाख रुपये आया, तो राकेश चौहान ने क्या किया कि उसमें से 20 लाख रुपए निकाल दिए, अपने खुद के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। राकेश चौहान के करंट अकाउंट से खुद के सेविंग अकाउंट में 20 लाख रुपए, ठीक है, और तो उसमें से फिर 5 लाख रुपए अपने लड़के हर्ष चौहान के खाते में ट्रांसफर किए। जरा राकेश का बयान। मैं सत्यपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे बेटे हर्ष चौहान द्वारा मेरा शीतल सिटी वाला मकान PNB बैंक से 25 लाख रुपए के लोन के माध्यम से जनवरी 2024 में खरीदा गया, जिसकी 6 किस्त मेरा बेटा भर चुका है, लेकिन मेरे बेटे के पास रजिस्ट्री कराने के लिए पैसा नहीं बचा था और मेरे बेटे को बिजनेस शुरू करने के लिए लोन की जरूरत थी। इसलिए मेरे बेटे ने शुभम सेन, शीतल सिटी, गज्जू पिपलिया रोड, मंडीदीप, रायसेन, मध्य प्रदेश एवं कमलेश सिंगारे निवासी शीतल सिटी तथा कविता ठाकुर निवासी कोलार रोड, भोपाल नामक महिला के माध्यम से लोन के लिए बात करी थी। इसके लिए मेरे बेटे हर्ष चौहान के माध्यम से कविता, शुभम, कमलेश ने मेरे बेटे हर्ष चौहान का सिविल स्कोर ठीक नहीं होने के कारण मेरे नाम से खाता खुलवाने के लिए कहा गया, और खाता खुलवाने के लिए चौहान ट्रेडर्स के नाम से एक फ्लैक्स बनाकर उनके द्वारा मेरे बेटे को दिया गया एवं कहा गया कि जिस दिन बैंक वाले वेरीफाई करने आए उस दिन घर के आगे लटका देना। पहचान पत्र एवं अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर मैंने मेरे बेटे हर्ष चौहान के साथ मेरे नाम से बंधन बैंक की न्यू मार्केट भोपाल की ब्रांच में एक सेविंग खाता एवं एक करंट खाता, इसमें जुड़ी मोबाइल नंबर कविता ठाकुर द्वारा दी गई थी। इसे मैंने बैंक में रजिस्टर्ड कराकर कविता ठाकुर को दे दी थी। कविता ठाकुर द्वारा मेरे करंट खाते में 20 लाख रुपए ट्रांसफर करे थे।
जिसमें से 15 लाख रुपए मेरे द्वारा बैंक जाकर नगद निकाले थे, जो मैंने कविता ठाकुर, शुभम सेन, कमलेश सिंगारे को दे दिए थे। और कविता ठाकुर द्वारा मेरे बैंक के खाते से मेरे बेटे के सेविंग खाते में 5 लाख रुपए मैंने दिनांक 26 जुलाई 2024 को ट्रांसफर करे थे। मेरे सारे बैंक दस्तावेज कविता के पास है। मेरे पास चौहान ट्रेडर्स के गुमास्ते की कॉपी मेरे पास रखी है, जिसे मैं जब्त करवा देता हूँ। कविता ठाकुर का 27 पढ़ू। पहले तो उसका वो सब लिखा कि नहीं है। पिछले साल माह, जुलाई, अगस्त में मेरी मुलाकात हरिद्वार में कृष्णकांत त्रिवेदी से एक होटल में हुई थी। कृष्णकांत त्रिवेदी ने मुझे अभिषेक शर्मा निवासी ग्वालियर से मिलाया था। अभिषेक शर्मा भोपाल में आकर मिसरोद में प्रियंका दीक्षित के फ्लैट पर रुकता था। उस फ्लैट पर अभिषेक शर्मा कई बार बिठा कर भी रखता था, ताकि जब खातों में राशि आए तब खाता धारक बैंक जाकर खुद ना निकाल ले। अभिषेक शर्मा ने मुझे पीयूष दुबे निवासी कोटा के बारे में बताया कि वह उसके ऊपर बैंक खाते पहुंचाता है। अभिषेक शर्मा मुझे बताया कि यदि तुम जल्दी पैसे कमाना चाहते हो तो तुम्हें मुझ लोगों को बैंक खाते की इंटरनेट बैंकिंग के आईडी, पासवर्ड एवं बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की सील मुझे देनी पड़ेगी। तुम्हारे द्वारा दिए गए खातों में जो भी पैसा आएगा उसका कुछ कमीशन तुम्हें दूंगा। मेरे पूछने पर उन लोगों ने बताया कि तुम इन खातों में ट्रांसफर होने वाली कुल रकम का लगभग 2% कमीशन देंगे। मैं उनकी बातों एवं लालच में आकर उनको कई बैंक खाते दिए, जिसमें कुछ खाते राकेश चौहान और हर्ष चौहान, कमलेश सिंगारे निवासी मंडीदीप के भी आए तब खाता धारक बैंक जाकर खुद ना निकाल ले। अभिषेक शर्मा ने मुझे पीयूष दुबे निवासी कोटा के बारे में बताया कि वह उसके ऊपर बैंक खाते पहुंचाता है। अभिषेक शर्मा मुझे बताया कि यदि तुम जल्दी पैसे कमाना चाहते हो तो तुम्हें मुझ लोगों को बैंक खाते की इंटरनेट बैंकिंग के आईडी, पासवर्ड एवं बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की सील मुझे देनी पड़ेगी। तुम्हारे द्वारा दिए गए खातों में जो भी पैसा आएगा उसका कुछ कमीशन तुम्हें दूंगा। मेरे पूछने पर उन लोगों ने बताया कि तुम इन खातों में ट्रांसफर होने वाली कुल रकम का लगभग 2% कमीशन देंगे। मैं उनकी बातों एवं लालच में आकर उनको कई बैंक खाते दिए, जिसमें कुछ खाते राकेश चौहान और हर्ष चौहान, कमलेश सिंगारे निवासी मंडीदीप के भी। मैं राकेश सिंह चौहान और उनके बेटे हर्ष चौहान, क्योंकि मंडीदीप को जानती थी, इन दोनों से मेरी मुलाकात शुभम सेन ने करवाई थी। शुभम सेन पहले एक्सिस बैंक में नौकरी करता था, बाद में लोन दिलाने के लिए दलाली का काम आदि भी करने लगा था। शुभम सेन के माध्यम से ही मैं कमलेश सिंगारे निवासी शीतल सिटी से मिली थी। मैंने मेरे मोबाइल नंबर, 3 मोबाइल नंबर हैं, इनको दे रखे थे। मैंने इन लोगों से मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप पर चैटिंग और वॉइस कॉल के माध्यम से बात करती थी। इन सिमों के व्हाट्सएप चालू करने के लिए ओटीपी मुझे अभिषेक शर्मा देता था। मेरे पास एक बलेनो कार जिसका नंबर 100 है। मैंने और शुभम सेन ने हर्ष चौहान, राकेश चौहान से कहा कि तुम खाते खुलवाकर मुझे दो, मैं तुम्हें 1% कमीशन दूंगी। हर्ष चौहान के पिता राकेश चौहान के नाम से गुमाश्ता और चौहान ट्रेडर्स के नाम के फ्लैग बनवाकर इन्होंने ही रखा था। पहचान के अन्य जरूरी दस्तावेज होकर हर्ष चौहान और राकेश चौहान ने बंधन बैंक के न्यू मार्केट भोपाल की ब्रांच में एक करंट खाता क्रमांक आखिरी डिजिट है 722, जिसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 100 मई 2024 में खुलवाया गया। खाते में रजिस्टर्ड नंबर के लिए 3 महीने ही हर्ष चौहान को दी थी। खाता खुलवाने के 7 दिन बाद सेविंग एवं करंट खाते से संबंधित पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक आदि राकेश चौहान के घर पर आने पर हर्ष चौहान और राकेश चौहान ने सभी डिटेल, पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक एवं नेट बैंकिंग आईडी, पासवर्ड एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की सील आदि लेकर कोलार रोड पर बुलाया और यह सब मैंने ले लिया। बाद में मैंने राकेश चौहान के खाते की जानकारी आगे अभिषेक शर्मा को व्हाट्सएप पर भेज दी। राकेश चौहान के बंधन बैंक के करंट अकाउंट खाते में 51 लाख रुपए की राशि दिनांक 25 जुलाई 2024 को जमा हुई थी। उसी दिन 20 लाख रुपए राकेश चौहान ने खुद के सेविंग खाते में ट्रांसफर कर दी और बाकी की राशि मैंने अलग अलग खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर करवा दी। राकेश चौहान ने उसके सेविंग खाते में आए 20 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए उसके बेटे के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की थी और 15 लाख रुपए उसने चेक के माध्यम। चौहान का खाता बंधन बैंक का था, हर्ष चौहान का खाता बैंक ऑफ इंडिया का था। राकेश चौहान के खाते में लगभग 1,50,00,000 फ्रॉड की राशि जमा कराई गई। हर्ष चौहान के बैंक ऑफ इंडिया के खाते में 80 लाख रुपए आए थे।
राकेश चौहान को खाता खुलवाने के लिए मैंने मेरे मोबाइल से 80,000 रुपए फोन पे नंबर के माध्यम से डाले थे। राकेश चौहान को उसके बैंक ऑफ इंडिया के खाते में आए राशि का कमीशन लगभग 80,000 रुपए मैंने फोन के माध्यम से डाले थे। मुझे मेरा और खाता धारकों दोनों का कमीशन अभिषेक शर्मा के द्वारा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से मेरे बाइनेंस खाते में USDT से दिया जाता था, जिसे मैं P2P बेचकर प्राप्त राशि INR में लेती थी। मेरी बाइनेंस में मेल ID so and so है, रजिस्टर्ड है। मेरा केनरा बैंक में खाता नंबर so and so है। अभिषेक शर्मा को बैंक खाते के इंटरनेट बैंकिंग के ID पासवर्ड एवं बैंक खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती थी। अभिषेक शर्मा को फ्रॉड में से उसका हिस्सा पीयूष शर्मा देता था। पीयूष शर्मा ने बताया था कि वह कई सारे मोबाइल लेकर रखता है, जिसमें बैंकों से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डले रहते हैं, जिसमें वह एक ऐप डालकर चलाता है, जिसमें OTP सीधे आगे के व्यक्ति को मिल जाती है। आगे की चेन के साथी राशि अलग अलग खातों में ट्रांसफर करते हैं। सारे खाते के पीछे जबलपुर साइबर सेल द्वारा वहां के अपराध क्रमांक 10/24 ऑफेंस अंडर सेक्शन 419, 420, 460, 471, 120B एंड 66D ऑफ IT एक्ट में दिनांक 9 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। वहां पर मुझसे 2 नग एयरटेल कंपनी के सिम, जिसका नंबर so and so है, एवं 2 नग मोबाइल फोन ओप्पो कंपनी के मोबाइल फोन नोट 2 सैमसंग कंपनी का, जिसे जबलपुर पुलिस द्वारा जब्त किया जा चुका है। मेरे उस मोबाइल में सभी से की गई चैटिंग मौजूद है। 1 मिनट डायरी दिखाओ। ये अभिषेक, पीयूष शर्मा, ये लोग मिले अभी तक? जी सर, अभिषेक शर्मा का जो उसमें नाम, इसमें एक लड़की का नाम भी आया था, प्रियंका दीक्षित, तो उसकी भी हम लोग भोपाल में तलाश कर रहे हैं। और उसका उसमें कुछ एड्रेस नहीं था, वो किसी होटल में रुकता था और बस के माध्यम से बताते हैं कि वो पार्सल से बुलवाता था सारी बैंक के लिए। तो उसकी जो मोबाइल की जब चैटिंग मिली तो उसमें कुछ नंबर या कुछ मिल सकते हैं। वो अभी फोरेंसिक लैब भोपाल में है, वहाँ से रिपोर्ट आना चाहिए। लर्नड काउंसिल, पूरी कहानी आपने सुनी, Yes. क्या कहना है? Yes, so my submission is that from the statements of Kavita applicant, it is quite clear that basically there were 2 transactions. जिसका एक एलिगेशन लगाया फ्रॉड का, उसमें she was not involved. ये एक लोन लेना और क्रेडिट स्कोर बढ़ाना, वो ये she was working as a bank agent, जो लोन दिलाते हैं, क्रेडिट स्कोर कराते हैं, तो उसकी चीज में she was there. और नहीं, यही चीज है। ये तो लोगों के फेक अकाउंट्स ओपन करा के जो बड़े फ्रॉडस्टर से उनको प्रोवाइड करती थी, जिससे वो अकाउंट्स यूज हो सके। आप देखेंगे स्टार्टिंग में द एंटायर कन्वर्सेशन व्हिच स्टार्टेड, इनको लोन लेना था और अकाउंट ओपन करना था। शी gave advice regarding that. That has nothing to do with the deception and the inducement that has been alleged. That was purely an act of the main accused person. In fact, in the complaint also, there is not a single word that the applicant ever induced the complainant. अभी इन्वेस्टिगेशन में और कहानी खुलेगी। And your worship, the other part is that someone already is with them. All the devices are with them. The transaction details, whatever she has there. आइडेंटिफिकेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन, अभिषेक शर्मा कौन है, पीयूष शर्मा कौन है, She will give the undertaking whenever they will call. She will appear. सिर्फ identification के लिए your worship, a lady being in the detention. is not that much simple a case. No. Your worship, any liberty may be given कि एक reasonable day के बाद I'll apply. You इनका भी एक may, you may come anytime, at least filing of the charge sheet. your worship, 30 days कहते हैं क्योंकि वो 60 days तो already हो गए हैं. Whatever time you need to. Because direct allegations, तो there is no allegation. And in fact, the account में trail भी नहीं है sir. आप देखेंगे कि the account, no amount has been seized from her. जो account seize किए हैं और जिससे लिया क्रिप्टो करेंसी में ले रहे हैं, यूएस ट्रेडिंग के थ्रू, कहाँ से ट्रेल कर पाएगी यहाँ की पुलिस? Your Lordship, challan has been filed. The investigation is completed. So When? Lordship, इसमें 90 days हो गए थे। 90 days के लिए 90 डेज वाला चालान है ना। ये अभिषेक शर्मा, पीयूष शर्मा, ये कोई किंगपिन अरेस्ट हुए हैं क्या? वो प्रियंका जिसके फ्लैट में रुकते थे, whether she is intercepted? अभी भी नहीं, उसमें सिर्फ नाम
Liberty. You wish to withdraw or have an order on merits? Your Lordship, withdraw with certain lease of life, otherwise that would be very difficult. The fact remains that wrongful gain नहीं है इसका वो. You may come after some time at least. What can I do? आप अपने हिसाब से देख के. It may be adjourned. This bail may be adjourned. No, But may be bail taken up cannot after be adjourned. 4 weeks. I have given much indulgence. I have called the investigation officer to understand whether Then Your Lordship, she is simpliciter, a pawn in the game, or it appears that she is well versed for what is going on. that is the entire issue. Whether she is simply a pawn or she was actively involved. That is Fully involved, she was taking cut. in No. this. Your Lordship, the statement that is under section 27, वो जब तक ये एक material substantial नहीं करेंगे तब तक वो चीज establish नहीं हो No पाएगी. learned counsel, no Yes, intelligence. advisors. I wish to withdraw, Your Lordship, to press after a reasonable time. That may be observed. Otherwise, it would be After difficult. reasonable time, liberty to renew the prayer after reasonable. Number 28. Bring for next Wednesday. This